इसमें आज की पहली न्यूज़ है, जीएसटी काउंसिल इज लुकिंग एट द टैक्स रेट आइटम बाय आइटम फॉर रैशनलाइजेशन. सीतारमन. तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन has said the GST Council is looking at the tax rated item by item for rationalization, and process has been under the discussion for a long time and delayed by the several factors including the impact of COVID-19. In an interaction with the senior journalist of the Hindu group of publication at its head of office, ठीक है, तो वहाँ पे इसने ये सब बताया है. तो it has been delayed for a long time and it's much overdue due to various factors including the impact of COVID-19 election in some states. Now there is a seriousness saying we need to take up this committee, यानी group of minister committee on the rate rationalization is looking into the आइटम बाय आइटम. ठीक है, तो सीधी बात है, वो कह रहे हैं हम वापस से देखेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे भाई, आइटम बाय आइटम देखेंगे कि सही पे क्या, मतलब जीएसटी रेट सही है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है. ऑन द क्वेश्चन रिलेटेड टू जीएसटी compensation says she said everyone knows that GST compensation cannot continue after June 30, 2022 and is by the law. ठीक है, so paying of compensation in the first 5 years after the implementation of GST continued and ended in June 22. ठीक है, तो अभी ये खत्म हो गया है इसके अकॉर्डिंग. तो the cess continue to be collected whether it has been continued or not. The rate and item on which the cess should be levied is being discussed in the GST Council. The minister also mentioned that some states want GST compensation to continue. तो सीधी बात है, जो वो बोल रहे हैं कि जो कंपनसेशन था स्टेट्स को मिलता था तो वो तो खत्म हो गया है, और वो कह रही है कि जो कंपनसेशन सेस है, जो उसके लिए कंपनसेशन के लिए अपन को सेस लगा रही थी गवर्नमेंट, वो अभी भी लगा रही है क्योंकि उन्होंने कोविड की वजह से और उनको दिया और ज़्यादा दिया, तो इसलिए वो उन्होंने बढ़ा दिया सेस. तो बस वही है कि उसको कंटिन्यू कर रहे हैं. फिर एक न्यूज़ है, क्वाड लॉन्चेस मैरीटाइम हेल्थ इनिशिएटिव कंडेम एग्रेशन इन द डिस्प्यूटेड रीजन. तो लीडर ऑफ क्वाड ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियन Prime Minister Anthony Albanese and Japanese Prime Minister Fumio Kishida meet at the sixth summit level at the Arkmayer Academy, Mr. Biden's former school in the Claremont, to Delaware, to announce a broad range of outcomes. These include the launch of new Coast Guard exercise, a logistic network, and expansion of maritime surveillance, and a project to combat सर्वाइकल कैंसर. तो इन्होंने ये 3-4 चीज़ों पे अभी फोकस करने की बात करी है. तो कौन कौन से सेक्टर है? न्यू कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज करेंगे, एक तो लॉजिस्टिक नेटवर्क होगा, एक्सपेंशन करेंगे मैरीटाइम सर्विलियंस का, और प्रोजेक्ट कौन सा लाएंगे, कॉम्बैट सर्वाइकल कैंसर. ठीक है, फिर ये इन्होंने जो साउथ चाइना सी में चाइना का एग्रेशन है उसको भी कंडेम किया है. फिर आगे देखते हैं, द क्वाड्स कैंसर moonshot will be involve contribution from all countries to combat cervical cancer. India will commit $10 billion towards the screening for the disease. Vaccine manufacturer Serum Institute of India and Gavi will provide up to 40 million vaccine for the region subjected to approval. तो सीधी बात है, इंडिया एक तो क्या करेगा, यहाँ पे 10 मिलियन देगा इसके स्क्रीनिंग के लिए, और फिर ये 40 मिलियन वैक्सीन बनाएंगे अपने जो इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट है वो. The countries announce and the Quad at Sea Ship Observer Mission in 2025 to improve interoperability and maritime safety. तो ये इंपॉर्टेंट हो गई सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है मीटिंग. द फ्यूचर कोस्ट गार्ड मिशन आर प्लान्ड आफ्टर 2025. अ लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट वाज आल्सो लॉन्च which will involve Quad countries to sharing airlift capacity to support डिजास्टर रिस्पॉन्स. ठीक है, तो इन सब की बात की है. तो इम्पोर्टेंट तो ये ज़्यादा है, एक तो क्वाड क्वाड एट सी क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 के लिए, और एक ये वाली कैंसर वाली. ठीक है,
फिर एक है मैत्री वर्कशॉप, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक मैत्री टू train Quad partner to monitor, secure their water and enforce their law and deter unlawful behavior was also announced. This will host first इंडिया विल होस्ट फर्स्ट मैत्री वर्कशॉप इन 2025। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैत्री वर्कशॉप किससे रिलेटेड है। मैरी टाइम लीगल dialogue has been launched to support action to uphold the rule-based order. Quad members condemned the maritime aggression with the pointed reference to situation involving China, which is currently, तो सीधी बात है, फिर उनको वो कंडेम कर रहे हैं तो वो तो करेंगे ही। और सबीना शोला अपन ने कितनी बार न्यूज़ में देखा है इस बार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही है। पर इस आज आज का न्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 सर्वाइकल कैंसर के लिए 10 मिलियन इंडिया देगा और 40 मिलियन वैक्सीन बनाएंगे। और फिर मैत्री वर्कशॉप जो इंडिया 2025 में होस्ट करेगा पहली। और ये कुछ हिस्ट्री बनाया तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन टीम बैक गोल्ड्स मेक हिस्ट्री एट द चेस ओलंपियाड। इंडियन रिकॉर्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन इट्स स्पोर्टिंग हिस्ट्री इन द बुडापेस्ट ऑन संडे, विनिंग द गोल्ड मेडल इन both in the open and women's सेक्शन ऑफ द 45th चेस ओलंपियाड। तो चेस ओलंपियाड में हमने क्या कर लिया, दोनों में जीत लिया, मजा ही आ गया, ये हिस्ट्री बना दी। तो डी गुकेश एंड दिव्या देशमुख along with the अर्जुन अराई गैसी, जो भी है मेरे को नाम तो नहीं समझ में आ रहा, फिर अवंतिका अग्रवाल won the individual gold to propel India to its first team gold in the chess Olympiad। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो बस इसको याद रखना है कि ये लोग थे, इनके नाम याद रखना है। डी गुकेश है, दिव्या देशमुख है, अर्जुन अर्जुन है एक, फिर एक बंतिका अग्रवाल है। तो 4 जनों के नाम याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया रिकॉर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन इट्स स्पोर्टिंग हिस्ट्री बुडापेस्ट में हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है। और फिर इसने ओपन और वुमेन्स सेक्शन दोनों में 45 चेस ओलंपियाड में इन्होंने जीत दर्ज की है, गोल्ड मिला है। एक न्यूज़ ये क्या है, द CWC टुक यूनिलेटरल डिसीजन टू रिलीज वाटर, ममता टू पीएम। तो ये कह रही है कि थी upping the ante against the central government, West Bengal CM on Sunday wrote another letter to Prime Minister Narendra Modi on the flood situation in the state, pointing out that critical decisions to release water were made unilaterally by the Central Water Commission without reaching the consensus. This is the second letter by Chief Minister। ठीक है, ये सब है, इसको क्या करूँ तो मैं आगे देखता हूँ मैं फिर। ये काम करनी है। ऑल क्रिटिकल डिसीजन आर मेड यूनिलेटरली बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेंट्रल वाटर कमीशन। तो ये बात कर दी इसने, ठीक है, विदाउट अराइविंग एट द कंसेंसस। तो सीधी बात है, कह रही है कि कंसेंसस पे नहीं आया और उससे पहले खुद से डिसीजन ले लिया है। वाटर रिलीजेस टेक प्लेस इवन विदाउट एनी नोटिस टू स्टेट गवर्नमेंट एंड रिक्वेस्ट, ठीक है। द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द वेस्ट बंगाल आर नॉट ऑनर्ड। ठीक है, सीधी बात तो ये वो कह रही है कि बिना हमको बताए तुमने कैसे कर दिया। Two official resign, तो protesting against the unprecedented and uncontrolled release of water by DVC, West Bengal Power Secretary Santanu Basu tendered his resignation as a member of DVC। तो सीधी बात है, वही सब टाइम पास हो रहा है। पर ये याद रखना, CWC है ना, न्यूज़ में आ गई, सेंट्रल वाटर कमीशन। सही बताऊं तो बहुत सारे आर्टिकल हैं। Unwanted curve. The fact checking cannot be excused to impose censorship. The center's move to create fact-checking unit empowered to order the removal of fake and false misleading information from digital and social media platform was never likely to succeed. The Justice A.C. Chandrukar of Bombay High Court struck down the amendment rule in the tie-breaking ruling after two judges' bench in January was split over its constitutional validity in an opinion that make it 2-1 decision. He agreed with the view of the Justice G.S. Patel, who held the provision violated the right to freedom of expression, sought to cohesively classify speech as a true or false based on the vague and undefined term. The rule introduced as the amendment in 2023 to the rules governing information technology intermediary and digital media ethics mean that once the fact-checking unit flagged a piece of information on social media platform as fake or misleading, the platform was bound to take it down.
Failure to do so would result in its losing its safe harbor protection or exemption from legal action for the third-party content hosted on the platform. Editor and publisher rightly saw the creation of fact-checking unit in the Press Information Bureau as a mechanism by which the center could censor anything that it disputes. The political stylist will be forced into self-censorship, argued comedian Kunal Kamra. The government contend that उसी की बात है यार, है ना? ये उसी की बात कर रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और उसको मतलब कर्व करता है, जो ये फैक्ट चेकिंग यूनिट है जो अपने पीआईबी की गवर्नमेंट की है, क्योंकि इससे जो पॉलिटिकल सटायरिकल्स होते हैं, स्टायरिस्ट होते हैं, जो मतलब गवर्नमेंट पे या पॉलिटिकल चीज़ों पे कुछ अपने कमेंट देते हैं, कुछ अपनी राय रखते हैं, तो वो लोग नहीं रखेंगे। उनके लिए एक सेल्फ, क्या बोलते हैं ना उसको, सेल्फ चेकिंग तरीके हो जाएगा, मतलब सेल्फ सेंसरशिप टाइप हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने एडिशन दिया है, तो उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन को तो याद रखना है आर्टिकल 19 न्यूज़ में आ चुका है, तो आर्टिकल 19 अपन को अच्छे से पढ़ना है। फिर एक है प्रोफेशनल इंडियन वुमेन वर्क द मोस्ट हावर ग्लोबली, द डेथ ऑफ द एना सेबेस्टियन। तो ये एक 26 ईयर ओल्ड जो भी चार्टेड अकाउंटेंट है जो पुणे में है, एज हेल्ड इंटेंस डिस्कशन अबाउट द वर्कलोड ऑफ प्रोफेशनल इंडिया अकॉर्डिंग टू लेटर बाय एना's मदर अनीता अगस्टिन। द यंग प्रोफेशनल एट द अर्नेस्ट एंड यंग लॉस्ट हर लाइफ ड्यू टू वर्क स्ट्रेस। तो वर्क स्ट्रेस से इस लेडी की डेथ हो गई, तो फिर वही ये बात आ गई कि कितना मतलब वर्क करते हैं। तो प्रोफेशनल इंडियन वुमेन वर्क द मोस्ट हावर्स ग्लोबली, तो उसकी बात आ गई। ठीक है, तो चार्ट वन मेन द वीकली हावर्स वर्क बाय इंडियन वुमेन इन 2023, तो वो बताया है इन्होंने। तो ये सब बता दिया, अब देख लेना, तुम लोग खुद से देख लेना। हाँ, पर वर्क के स्ट्रेस में अपन इसको एग्जाम्पल को डाल सकते हैं। ठीक है, एना सेबेस्टियन वाला। फिर एक ये आर्टिकल आया है, ये कल अपन ने पढ़ लिया था। ऑन द सितंबर 20 द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया व्हाई द नेम रिट्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम फॉर द अपॉइंटमेंट एज द जजेस वर नॉट येट क्लियर्ड एज कॉलेजियम रिट्रेशन आर बाइंडिंग ऑन द यूनियन गवर्नमेंट। Following the remark, the union government processed the appointment of 8 new High Court Chief Justice. In this article dated 4, ठीक है, तो ये सब बता रहा है कि भाई ऐसा क्यों हुआ और क्या नहीं हुआ। तो बस उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जजेस को कैसे कैसे अपॉइंट करते हैं और क्या क्लैरिटी चाहिए। तो जैसे एक तो ये देख, जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है थ्री इंस्ट्रूमेंटलिटीज। ठीक है, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिकेटिव। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टेट्स लॉ एंड पॉलिसीज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर at the center and cabinet led by the chief minister in the state are its principal agencies. The rule of law govern the administration। ठीक है, तो बस वही टाइम पास कर रहे हैं, है ना? Parliament consisting of two houses, legislature at state level make law when the executive and the legislature do anything that is arbitrary or contrary to the constitutional provision. The judiciary has the power to correct them by issuing direction under the article 123। तो अपन को एक तो 123 का पता चल गया, ठीक है, कि क्या कर रहा है। फिर the constitution lay down the fundamental rights. If the state do not safeguard them, any citizen can approach to Supreme Court for the issue of the right to defend his or her fundamental rights। तो रिट इशू करने की भी बात पता चल गई भाई। ठीक है, फिर the judiciary has pre-eminence, sorry, फिर but the judiciary itself has act according to constitution, work within the framework of constitution। ठीक है, वो सब बात करने लग गया वो। फिर दी, तो आगे क्या है, द कोर्ट्स एज द इंस्टीट्यूशन आर entitled to no greater immunity from the criticism than other person or institution just because the holder of justice office are identified with the interest of the justice, they may forget their common human frailties and the fallibilities. These have sometimes been martinet upon the bench, as there have also been pompous or wilder of authority who have used to paraphernalia of the power in the support of what they called their dignity.
Therefore, judges must be kept mindful of their limitation of their ultimate public responsibility by vigorous stream of criticism expressed with the कॉन्डोवर हाउवर ब्लंट। तो सीधी बात है, अब ये देखो, ये मेरे को कतई समझ में नहीं आया, बहुत खतरनाक लैंग्वेज है। पर मेरे को जितना समझ में आया कि 143 अपन को पता चल गया है, और इसकी रिट के बारे में बात कर रहा है, ये तो अपन को पता ही है। तो 143 मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, तो वही है वो, कौन सा जस्टिस करता है ना, पूरा जस्टिस उसका ही है शायद से, फुल जस्टिस के लिए 143। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। मोदी गिफ्ट एन एंटिक सिल्वर हैंडेड एंड ग्राफ्ट ट्रेन मॉडल टू बाइडेन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे गिफ्टेड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एन एंटीक सिल्वर हैंड graved train model, the rare and extraordinary piece masterfully crafted by artisan from Maharashtra and showcasing the pinnacle of the Indian metalwork artistry. The vintage piece in the involve arty cat filigree work and is made of 92.5% silver, the official said. The creation is tributed to steam locomotive era, the artistic brilliance merging with the historical significance. तो सिग्निफिकाई सीधी बात है, उसको बता रहा है कि ठीक है, ये अपन काम नहीं है। दिस वर्क नॉट ओनली हाईलाइट द आर्टिजन्स exceptional skill but also serves as a glowing testimony to long history of Indian Railways and its ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो सीधी बात है, वो रेलवे के बारे में बता रहा है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है आगे देखते हैं। फिर मोदी चूज पश्मीना सॉल इन दी पेपियर मैश। तो पेपर मैशी बॉक्स, उसमें क्या है, उसकी जो लेडी जो बाइडन है उसके लिए इसने पश्मीना की शॉल दी है एक, तो ठीक है। पश्मीना शॉल आर कंसिडर्ड एज द एपोजी ऑफ द जम्मू कश्मीर रिच एंड फाइन legacy and handcrafting. So contemporary designers are incorporating modern sensibilities, experimenting with the bolder colors, playful पैटर्न, ठीक है। तो पश्मीना दिया है, सीधी बात है, और पश्मीना कहाँ का है याद रखना, और पेपर मैश है वो भी कहाँ का है, तो वो भी कहीं का होगा, पेपर मैशी वर्क होता है कहाँ पे, कश्मीर का ही होता होगा। फिर द दिल्ली देलवारा सिल्वर ट्रेन मॉडल गिफ्टेड बाय नरेंद्र मोदी टू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन। तो कल्चरल कनेक्ट, ठीक है भाई, कल्चरल कनेक्ट हो रहा है तो बढ़िया है। ये अपन ने पढ़ा था उसी का कंटिन्यू। क्वाड लॉन्च अ मैरीटाइम हेल्थ इनिशिएटिव। द स्टेटमेंट कंडेम्स द डेंजरस यूज ऑफ कोस्ट गार्ड मैरीटाइम मिलिशिया वेसल्स एंड opposes the disruption of other countries' offshore resources exploiting activities. While there was no direct mention of Russia, और इन सबकी इनको हटा दो, फिर क्या है था, ईच ऑफ अस विजिटेड यूक्रेन, और इनको भी हटा दो। तो क्वाड fellowship to promote STEM education has been expanded to include 50 scholarships worth कितना, ये $5 लाख फॉर स्टूडेंट फ्रॉम द रीजन टू स्टडी एट द गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो एक चीज़ तो अपन को ये याद रखनी है, फेलोशिप दे रहे हैं किसके लिए, स्टेम एजुकेशन के लिए। और तो यही है। और तो इसमें फिर वो वॉर वार की बात कर रहा है, तो ये अपन को काम करनी है, इसको हटा देते हैं। ये न्यूज़ अपन मीन्स में लिखेंगे, यूपी राजस्थान एमपी टॉप इन द केसेस ऑफ एट्रोसिटीज ऑन द दलित। ठीक है। तो यूपी में कितना है, 23%, राजस्थान में 16% केस है, और एमपी में 15% है। तो नियरली 97% ऑफ ऑल केसेस ऑफ द एट्रोसिटी अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट इन 2022 वर रिपोर्टेड फ्रॉम 13 स्टेट, विद द Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh recording at the highest number of such crime, according to new government report. ठीक है। According to latest report under the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act of Social Justice Empowerment Ministry, majority of the atrocity against ST were also concentrated in 13 state। ठीक है। तो उसमें भी वो कह रहा है कि जो ST है उनमें भी इन 13 स्टेट में ही है, और SC में भी इन 13 स्टेट में ही है। तो वो सब यही बात कर रहा है। तो SCs की बात कर दी कि उसमें SCs में तो कौन से में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर है कौन से में राजस्थान में, फिर है MP में। ठीक है। तो ये सब बात है। और ST के रिलेटेड केसेस में बात देखें तो SC से एस फॉर ST related cases 63.32 result in the charge sheet being filled while 14.71 ended with final reports at the end of period under the review 2702 cases involving atrocities against ST are still under the investigation। तो वो कह रहे हैं स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो ये सही टाइम पर चल रहा है यहाँ पे। तो
पर यही है कि है ना, सबसे इम्पोर्टेंट अपन को पता चल गया कहाँ पे एससी के ऊपर सबसे ज़्यादा, कहाँ पे यूपी में, फिर राजस्थान में, फिर एमपी में। और ये देखो सिमिलरली 98.91 ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट एसटी वर कंसंट्रेटेड इन 13 स्टेट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गवर्नमेंट रिपोर्ट अंडर द शेड्यूल कास्ट। तो एसटी के खिलाफ भी यहाँ पे ही है, सीधी बात है। अब एक ये न्यूज़ है जिसमें वो हेमंत वो विश्व शर्मा है, वो असम का चीफ मिनिस्टर, वो कह रहा है कि असम में क्या है 86% ड्रॉप हुआ है राइनो की हंटिंग पोचिंग में, शिकार में। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज़ में आ चुका है। और ये क्यों बोला है उसने, क्योंकि अभी राइनो डे था, वर्ल्ड राइनो डे। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ वापस देख लेते हैं, फोटो भी दिखा देता हूँ। इंडिया क्राउन्ड किंग एंड क्वीन ऑफ 64 स्क्वायर्स, द डोमिनेंट मेंस टीम साइन ऑफ विद द फ्लरिश बाय बीटिंग द स्लोवेनिया। तो याद रखना है, मेंस टीम ने तो बीट किया था स्लोवेनिया को, वाइल वुमेन इन्होंने सुपर परफॉर्मेंस अगेंस्ट दी अजरबैजान। तो इन्होंने कहाँ पे, वुमेन्स ने तो किसको हराया है, अजरबैजान वाली टीम को। और अपन ने मेंस ने हराया है किसने, स्लोवेनिया की। और कहाँ पे हुआ था, बुडापेस्ट में। और अपने खिलाड़ी हैं ये सब हैं, ठीक है। तो गुकेश, प्रगनंदा, अर्जुन, विदित, फिर है ये हरी कृष्णा, प्लेड सुपर, ठीक है। ये तो आदमी हो गए। और वुमेन्स में कौन कौन है, हरिका, वैशाली, दिव्या, वंतिका, तानिया। तो इनके नाम याद रखने हैं अपन को, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आने वाला है, ये तो फिक्स है।